कि आपका क्या हो जाता है कि अगर बोल दीजिए कि एक सर्जन है, डॉक्टर है, उसको एक कार्पेंटर का वर्क बोल दिया है, तो वो बोलेगा कि ये मेरा काम नहीं है, तो यू डोंट गेट इनटू इट बिकॉज यू से दिस इज नॉट माय वर्क, राइट? सो अभी ये जो सॉफ्टवेयर का जो है technology, when you are adapting technology into your own work, you feel little uncomfortable. Is it right or not? ऐसा होता है कि you don't sink into it because this is not my cup of tea. You get that option, you get that feeling that this is not my cup of tea. But why do we get into SAP? So why we need SAP first of all? Okay, in the first place. Okay, so can any one of you share some knowledge to your counterparts on SAP? आप कुछ पता है SAP के बारे में? More of a ERP, it can manage your account part, your part. Okay, thank you. Okay, You have a systematic frame on the transactions. okay, systematic frame. Yeah, okay. Yeah. It is a German-based company software. Yes, German-based company. Yes. Yeah. There are different models such as FICO and Yes. FSCO. Yeah, FICO. Yeah. we can develop different models as per our requirements. Exactly. Different modules. Yeah, we can implement different modules as per our requirement. Yeah. तो हम लोग चलते हैं कि एक बिल्कुल ही लेमन पर्सपेक्टिव से चलते हैं कि यार मुझे कुछ पता नहीं है टेक्नोलॉजी, सो वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अभी होता ये है कि सी व्हेन वी आर डूइंग आवर वर्क इन द फाइनेंस स्ट्रीम, तो आपको क्या होता है कि यू हैव टू हैव एन ऑटोमेशन, राइट? सो आजकल के ज़माने में तो आप तो बुक में तो अपडेट नहीं करते होंगे, ठीक है? तो यू हैव टू यूज सॉफ्टवेयर और सम सॉफ्टवेयर वेयर यू कैन अपडेट ऑल योर all your ledger balances or whatever it might be, all the finance related issues you will update somewhere, right? So आप कौन से सॉफ्टवेयर में यूज करते हो? मतलब what is the software that you normally use? Is there any software that you are already aware of which you use for finances? Tally. Yes. Tally. Miracle. Okay. Yes. Zoho. Okay. Zero. Okay. But Tally is very popular, quite popular, right? So now let's say, when I was a child, okay, then what used to happen is we had a camera to take the photos. We had a video cam. We had the laptop to check the emails, and we had alarm watch to check, put an alarm, and and calendar to check the dates. We had 40 different gadgets. 40 different gadgets. वो टाइम में होता क्या था कि I have to send a photo, take a photo and send a photo to US. So even if I am the fastest person, it would take at least 10 minutes for me, ठीक है? 10 minutes तो लगेगा मुझे, क्योंकि फोटो खींचना पड़ेगा, उसमें से SD कार्ड खींच के वहां से मैं लैपटॉप में अपडेट करके वहां से मेल करके मुझे US भेजना है। अभी आपने को कितना टाइम लगेगा? How much time will it take for you? Seconds. The laziest person on the earth will take 10 seconds to send it to US. तो फर्क क्या आ रहा है? भी उठाना है, ऐसे लगाना है, फिर बाद में WhatsApp में लाना है, उसको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? तो the fastest person is taking 10 minutes there, and here the laziest person is taking 10 seconds. तो इतना deviation क्यों है? What does it make it more efficient? अपना प्रोसेस इतना फास्ट क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? इक्विपमेंट तो वो टाइम में भी था ना सर, वो टाइम में भी था टेक्नोलॉजी वो टाइम में भी था। मेरा जो कैमरा था वो भी टेक्नोलॉजी पे चलता था, सॉफ्टवेयर वहाँ पे भी था, वो टाइम में भी था, इंटरनेट कनेक्टिविटी वो टाइम में भी था, लैपटॉप का इंटरनेट कनेक्टिविटी विदाउट कनेक्टिविटी इट नॉट गो टू यूएस ना, मेल के लिए तो इंटरनेट चाहिए। आई वाज यूजिंग इंटरनेट। बैकग्राउंड मैकेनिज्म जो वो उस टाइम पे था, अभी जो इस टाइम पे उसका जो बैकग्राउंड मैकेनिज्म इसका जो अभी लेटेस्ट है उसका सिस्टमैटिक है पूरा सिस्टमैटिक। हाँ, आप थोड़ा नजदीक आ गए। प्रोसेस, हाँ, रियल टाइम, ओके, रियल टाइम, Common platform. हाँ, Common platform. yes, common platform, and वो common platform कैसे आ रहा है? Because of integration of all the technologies. अभी ये है अपने को the speed is getting created into this entire process because of the integration. टेक्नोलॉजी वहाँ पे भी था, 20 साल पहले भी टेक्नोलॉजी था, मगर अभी क्या है ना कि इंटीग्रेशन से फास्ट चल रहा है। तो अभी क्या है ना, आपका जो टैली जो चल रहा है वो फाइनेंस को हैंडल करता है, मगर जो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है वो ERP है।
ERP में क्या है कि आपको टैली चलेगा, मतलब फाइनेंस चलेगा, और all other departments are also integrated into it. The manufacturing stream, the sales stream, the HR stream, and the production stream, the warehouse stream, everything is integrated into single software. You don't have to again maintain multiple technologies or multiple softwares to maintain all these things, because you have a single source of truth, wherein if you first enter something into it, for example, like there are companies I've seen like they maintain a different technology for finance and different software for finance and different software controlling, costing के लिए, मतलब सब controlling का पूरा different. तो अभी क्या है ना कि this is all not needed right now in ERP. ERP is an integrated software just like your smartphone, which integrates all into one, and you don't have to update multiple times, and you don't have to do all the things in different technologies और different softwares में करने की जरूरत नहीं. तो ये पहले चलता था, अभी भी चल रहा है सॉफ्टवेयर छोटे कंपनीज में, बड़े कंपनीज में ये नहीं चलेगा. If it's a huge company, you have to go for ERP. सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ऐसा, मतलब आप बोल रहे हैं कि टैली में चलेगा, इसमें चलेगा, नहीं. इफ यू आर अ बिग एंटरप्राइज, यू आर गोइंग फॉर ERP. तो ERP में बिग डैड कौन है? SAP. And this is there from 50 plus years. It started its journey in 1972 in a place called Waldorf. आपने बोला कि जर्मनी का कंपनी है और 1972 में स्टार्ट हुआ था, और this was started by obviously जर्मन का तो टेक्नोलॉजी थोड़ा अलग ही चल रहा है, तो अपना ऐसे चल रहा है तो उनका ऐसे चलता है. तो जैसे आपको पता है कि जर्मन टेक्नोलॉजी in the world, throughout the world, आप देखिए, no one will showcase like Indian technology. आप कहीं सुने चाइनीज टेक्नोलॉजी? कहीं सुने? नहीं बिकेगा, मगर जर्मन टेक्नोलॉजी बिकेगा. अब देखिए कि यूएस जर्मन का कार्स का चलता है ना कि जर्मन टेक्नोलॉजी बस चलता है उसमें. तो जर्मन का टेक्नोलॉजी इसलिए पॉपुलर है कि उसका थोड़ा थिंकिंग अलग है. विल गेट बैक टू दैट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम जब टाइम मिला. मगर क्या है ना, इसमें क्या होगा कि ERP के बारे में हम लोग को समझना पड़ेगा. अच्छा, तो हम लोग को क्या है ना कि मैं बोल रहा हूँ कि टैली है, चलो टैली है, मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा इंटीग्रेट करके एक सॉफ्टवेयर बनाया उन्होंने, उसका नाम दिया ERP. ठीक है, मगर SAP कहाँ पे आया? Where does SAP fit into it? जैसे मैंने बोला कि ये इंटीग्रेशन चल रहा है, चलो भाई ओके. SAP क्या है? तो SAP एक कंपनी है. This company manufactures ERP softwares throughout the world, and this is the pioneer in SAP in ERP software. जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दो. किसी को फोटोकॉपी के बारे में पता है? फोटोकॉपी अब आप जाके बोलिए एक शॉप में कि फोटोकॉपी चाहिए, चल निकल नहीं है बोलो, तो बोलेंगे, आप पूछे कि जेरॉक्स है, ऐसा बोलना दिमाग क्या कर रहा है, तो जेरॉक्स करने के लिए. Xerox is not the concept. Concept name is photocopying, and Xerox is the company who manufactured that machine. अभी तो दूसरे भी कंपनीज चल आ गया, मगर you still call it as Xerox. जैसे नाम बन गया ऐसा. तो ERP का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट. जैसे फोटोकॉपी का कॉन्सेप्ट हो गया ना, ERP इज आल्सो ए कॉन्सेप्ट. एंड किसने लाया इसको मार्केट में? SAP लाया. तो SAP का इतना पॉपुलर हो गया कि SAP मतलब ERP मतलब SAP, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो SAP एक कंपनी है, ERP इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट. एंड दिस SAP कंपनी जो है, जैसे CA के टर्म्स में क्या बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग इट नाउ, बट इट्स लाइक अ फॉक्स. फॉक्स होता है, टेक एडवांटेज ऑफ द मूवमेंट एवरी टाइम. तो वो नंबर वन ही रहता है. नंबर वन कैसे रहता है? स्ट्रैटेजी वैसा है उसका. नो यू बिल्ड, आपका नाम सर? प्रतीक. अब प्रतीक सर ने बनाया एक सॉफ्टवेयर, वो चल रहा है, SAP आएगा उसको खरीदेगा. They acquired more than 600 companies like right now till now, and they have the cash, ready cash, liquid cash. They don't have to take the loans. तो ये pioneer रहेगा. ये इसलिए बोल रहा हूँ कि next 20-30 साल तक ये नंबर वन पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि इसके पास लिक्विड कैश है, इसके पास पूरा प्लान है. Okay, and who has to beat this SAP? Either Microsoft or Microsoft, क्योंकि उसके पास भी कैश है. मगर in ERP they have tried from 20 years, they are not able to do it, and next 20 years 30 years में SAP रहेगा और big enterprises को पूरा चलाने के लिए SAP ही यूज होगा. Okay, तो जैसे SAP जब स्टार्ट हुआ था, now let's take a very simple example of, मैंने बोला कि कार एक कॉन्सेप्ट है. मैं बोलूँगा कि ये कार है, ये मेरा कार है. Anyone will accept that this one?
This is my car. Will you accept it? Why you don't accept it? Okay. संजय सर ने बोला कि ये मुझे पता है कार क्या है. Don't fool me. This is not a car. Okay. Now what? How can sir say that this is not a car? Because he knows the definition of a car. So आपने को क्या है कि ERP का definition समझना है कि भाई ERP सॉफ्टवेयर होता क्या है. जैसे मेरे पास एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, वो ERP सॉफ्टवेयर है कि नहीं, टैली है, बस बताओ अभी ERP है कि नहीं. ERP ये सॉफ्टवेयर है जिसपे पूरे मॉड्यूल्स, पूरे डिपार्टमेंट्स चलना चाहिए. जैसे सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, तो फाइनेंस हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, और वेयरहाउस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, एनीथिंग ऑल शुड रन ऑन वन सॉफ्टवेयर. वही को ERP बोलते हैं. जैसे यार मेरा पूरा सब मॉड्यूल चलता है पर HR नहीं चलता है. इट इज नॉट एन ERP. जैसे आपने बोला कि हाँ सर आपका नाम बकुल सर इज एन ऑलराउंडर क्रिकेटर बोलना. You also say okay fine. Bakul sir is all-rounder cricketer. Excellent. But then I say Bakul sir cannot ball. Cannot do bowling. Immediately I बोलेंगे कि यार if he cannot ball, how can you say that he is an all-rounder? All-rounder का definition ही है कि वो सब करना चाहिए. अब bowling भी आता है तो उसको all-rounder कैसे बोलेंगे? तो if you want to say some software is an ERP software, का definition is that it should handle all the departments of a company. Not just finance, not just HR, not just sales, not just manufacturing, everything. जैसे 40 प्लस मॉड्यूल्स जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबको एक ही सॉफ्टवेयर पे चलाना चाहिए, उसी को ERP सॉफ्टवेयर बोलते हैं हम लोग. इसमें नंबर 1 जो हो गया वो SAP हो गया. तो जैसे we'll get back to this example of car. Now when I say car is a concept, and you can differentiate without what is a car, what is not a car. ठीक है? तो now we have to understand that just like car is a concept, ERP is also a concept. ERP. Now, definition of ERP is it should manage the entire organization, entire enterprise. ERP मतलब हो गया कि enterprise resource planning. आपको बहुत लोगों को पता है. तो enterprise resource planning का मतलब ये है कि वो पूरा प्लानिंग करना चाहिए सब रिसोर्सेज का within the enterprise. Within the enterprise सब रिसोर्सेज को हैंडल करना चाहिए. उसी को ERP सॉफ्टवेयर बोलते हैं. उसमें अभी ERP सॉफ्टवेयर में जब इन्होंने एंटर किया था 1950 में, that time it was very simple, basic कि चलो सब डाटा इकट्ठा करो, एक में अपडेट करो, हो गया ERP. Now today it is not like that. Today we have associated with artificial intelligence, machine learning, data science, data analytics, and then we are also trying to bring in blockchain into it. And जो भी cloud तो पहले से cloud is there from very long time. जैसे SAP का जो सॉफ्टवेयर है, ये आपका हार्डवेयर है. हार्डवेयर पे बैठेगा डेटाबेस, डेटाबेस पे बैठेगा आपका सॉफ्टवेयर. ओके तो SAP सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचता था. इट यूज्ड टू सेल ओनली सॉफ्टवेयर्स इन द पास्ट. अभी क्या हो गया कि नाउ दे हैव गॉन टू कंप्लीट उसका पैकेज उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया. जैसे आपको बोलता हूँ कि जैसे सर प्रतीक सर व्हाट ही डिड इज लाइक ही इज बिकम सुपर रिच, अल्ट्रा यूपर रिच. एलन मस्क की तरह उन्होंने भी कुछ करना चाहा. No, he is bigger than Elon Musk. Now he wants to do something to his village. आप एक remote village के बारे में वापी okay हाँ no take a remote village. अच्छा समझ लेते कि वापी एक remote village है. Okay so now he wants to do something. तो अगर इनको खाना दिए विलेज में, खाना दिया तो एक दिन में भूल जाएगा, कपड़ा दिया तो 1 month में भूल जाएगा. He doesn't want to do that. He wants to do some permanent change in the society. तो बोलेगी कि लाइब्रेरी स्टार्ट करेंगे. तो लाइब्रेरी स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक प्लेस चाहिए, एक हॉल चाहिए, बट बहुत बड़ा, एक 1000 कैपेसिटी का एक हॉल बना दिया और उसमें बुक्स रख दिया बीच में एक माउंटेन की तरह. एक बड़ा माउंटेन का बुक्स है एंड एक बड़ा हॉल है. ठीक है. अब रिबन कटिंग के लिए आएंगे सर. राजेंद्र सर आएंगे रिबन कटिंग के लिए. बोलेंगे प्रति सर रिबन कट करो. बुक्स का है पूरा माउंटेन में ढूंढिए. अब सब लोग सरप्राइज, ये क्या है? ये माउंटेन में बुक ढूंढना क्या है? होगा कोई आएगा लाइब्रेरी को. अभी क्या होगा, आप जो लैपटॉप में आपका डेटा सेव कर रहे हो ना, दैट इज सेम लाइक दैट. एक बड़ा हॉल में आपको
डेटा बुक्स रख दे रहे हो बीच में और उसको ढूंढ रहे हो. Did you any time get that वो ऐसा सिचुएशन आ गया होगा कि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट है मगर मिल नहीं रहा है तो हर रोज आता है. हाँ तो वो क्या है ना कि क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम होता है. तो अभी ये लाइब्रेरी में जो है क्या मिस हो रहा है? एक बड़ा हॉल है, बुक्स तरह हैं, ऑर्गेनाइजिंग मिस हो रहा है. तो उसको क्या चाहिए? रैक्स. जब रैक्स में आपको प्रॉपरली ये स्टोरी टेलिंग का है, ये फाइनेंस का है, ये हिस्ट्री का है, ये मतलब साइंस का है, बराबर एनी पर्सन कैन गेट वॉट एवर बुक ही विश इन सेकेंड्स. ऐसा होना चाहिए ना ऑर्गेनाइजिंग. तो नाउ एवरी सॉफ्टवेयर विल हैव अ डेटाबेस इन इट. जैसे आपका हार्डवेयर हो गया आपका हॉल, ठीक है, उसमें बैठेगा पहले रैक्स. तो रैक्स मतलब क्या है यहाँ पे? डेटाबेस. डेटाबेस में क्या होगा? टेबल्स हो. रैक्स मतलब वो रोज एंड कॉलम्स हो गया ना, तो ऐसे ही डेटाबेस में आपको टेबल्स एंड कॉलम्स का कोई भी टेबल्स मिल जाएगा. कोई भी डेटाबेस आप देख लो वर्ल्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड. आप और कोई डेटाबेस देखो, एसक्यूएल डेटाबेस देखो, एसएपी का. मैं इसके बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी टेक्नोलॉजी क्या चल रहा है उसके बारे में आपको ठीक तरह से जस्ट वांट टू डिस्कस दैट. तो नाउ यहाँ पे हो गया कि हार्डवेयर हो गया, मतलब आपका हार्ड डिस्क, उसके ऊपर हो गया आपका डेटाबेस, उसके ऊपर हो गया आपका सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू योर डेटा. आपका पूरा बिजनेस का डेटा पूरा वहां से आपके डेटाबेस में जाके बैठेगा. तो अभी इतना दिन का बिजनेस जो 2010 तक जो एसएपी का बिजनेस चलता था वो सिर्फ सॉफ्टवेयर का ना. एसएपी सेलिंग पूरा पैकेज, डेटाबेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पूरा एक ही पैकेज. यू डोंट हैव टू सेलेक्ट, यू डोंट हैव टू गो टू अनदर प्लेस एंड सेलेक्ट. इससे होता क्या है कि इसका जो प्रॉफिट है 70% बढ़ गया. Now they become even more powerful. So others are thinking that मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है तो इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा होगा. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो कल नहीं डूब सकता है. 90% चांसेस आर इट विल स्टिल देयर विद द नेक्स्ट 20-30 years, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली प्ले करता है. तो इसमें क्या है ना कि आपका जो अभी का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसमें आपको आ गया क्लाउड. क्लाउड में क्या आ गया? इन क्लाउड no matter whatever software you take in the world, I'm generalizing it. SAP specifically SAP के बारे में नहीं बोल रहा मैं. In general आपको क्लाउड बहुत सुनाई देगा आपको कि यार मेरा जो सॉफ्टवेयर है, जो मैं ये जो फाइनेंस का पूरा अपडेट्स जीएल प्रिपेयर कर रहा हूँ वो क्लाउड में है. क्लाउड में मतलब क्या है? क्लाउड मतलब क्या है? तो अभी इसके बारे में हम लोग समझते हैं. हम लोग को लाइब्रेरी के एग्जाम्पल को चलते हैं. लाइब्रेरी के एग्जाम्पल में आपको जो हो गया वो हॉल बना दिया ना, प्रतीक सर ने हॉल बना दिया. वो हॉल समझ लीजिए कि वो रेंटेड बेसिस पे ले लिया. रेंटेड बेसिस पे वो उन्होंने नहीं बनाया, सिर्फ एक बड़ा हॉल है, रेंटेड बेसिस पे ले लिया. उसमें दानादान रैक्स रख दिया, बुक्स रख दिया, बस हो गया. उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. जैसे तीन चीज है क्लाउड में. When you go to the cloud, when you are entering software, जैसे टैली में भी होगा, जैसे दूसरा जो सॉफ्टवेयर ये भी होगा. क्लाउड में हो गया एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जो हो गया कि उन्होंने क्या किया, एक हॉल रेंट पे ले लिया. तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में होता है कि हार्डवेयर आप रेंट पे लेते हो. जैसे हार्ड स्पेस, जैसे आपको गूगल ड्राइव है ना, गूगल ड्राइव आप रेंट पे ले सकते हो. तो गूगल ड्राइव जैसे रेंट पे लेते हो, आपका पूरा एंटरप्राइज का पूरा जो आपका डेटा है, आपको पूरा जो बिजनेस चलता है, धंधा चलता है, वो सब क्लाउड पे आ जाएगा. ठीक है. और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है कि वो एक नेक्स्ट लेवल पे है कि प्रतिशत ने क्या किया, एक हॉल ले लिया, हॉल भी रेंट पे, रैक्स भी रेंट पे, तो क्या हो गया, वो उसको डेटाबेस भी रेंट पे हो गया. सो नाउ इन टेक्नोलॉजी, इन सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या हो गया कि आप सिर्फ हार्डवेयर आप रेंट पे लेते हो, वो भी क्लाउड पे. देन हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जहां पे आप डेटाबेस भी रेंट पे लेते हो. नाउ अभी लेटेस्ट का ट्रेंड जो है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, SaaS. तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो हो गया, आप सॉफ्टवेयर भी नहीं खरीदते हो, सॉफ्टवेयर भी आप रेंट पे लेते हो. तो उससे क्या होगा कि यू जस्ट लॉग इन, यू डोंट बाय एनी सॉफ्टवेयर एट ऑल. आप सॉफ्टवेयर कोई नहीं खरीदते हो, आप क्या करते हो कि यू विल जस्ट पे and log in. You don't have to install, do that, do this, security,
आजकल का जमाना क्या है ना, व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट, सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? फ्रॉम CS पर्सपेक्टिव थिंक, डोंट थिंक फ्रॉम कोरोना एंड ऑल, Data security. डेटा डेटा लॉस, हाँ डेटा लॉस है, Data security. डेटा सिक्योरिटी। डेटा लॉस के लिए क्या है ना कि अभी एक 20 साल के पहले डेटा लॉस बहुत बड़ा धमाका था। अभी क्या है ना कि आई टेल यू, डेटा लॉस के लिए इतना बैकअप है, इतना बैकअप है, आप पूरा जला दो फिर भी कहीं पे डेटा पड़ा हुआ है। ऐसा है, मतलब अभी टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है। 20 साल के पहले ऐसा था कि एक अपना एक सोर्स रहेगा, उसको जला दो, गया डेटा गया। आज के जमाने में सबसे बड़ा हेडेक डेटा सिक्योरिटी का बहुत इशू है। यू नो, इन द वर्ल्ड द बिगेस्ट फ्रॉड अभी का मतलब पूरा मैनकाइंड में, पूरा अपना क्या मैनकाइंड मतलब क्या है, जो अपना हाँ पूरा मतलब जो हिस्ट्री ऑफ मैन, जो ह्यूमन बीइंग्स का पूरा हिस्ट्री में सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है? साइबर सिक्योरिटी। मतलब अभी आप लोगों को सब टेक्नोलॉजी का टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे कि वो पूरा ऑनलाइन खरीदेंगे ना, तो ऑनलाइन खरीदेंगे तो वो बंदा देख लेगा कि क्या साइबर सिक्योरिटी का क्या इशू है, वो सब वो देख लेगा। अगर अपना कुछ फ्रॉड हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना दिन क्या चलता था अपने माइंड में, क्या चलता था, अरे यार मैं अपना डेटा जाके अमेज़न में रख रहा हूँ, ठीक है, इज इट जेन्युइन है कि नहीं, मतलब आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग विद माय सिक्योरिटी ना, वो हम लोग सोचते थे। अभी उल्टा हो गया कि अगर मैं अमेज़न में रखूं तो ऐसा है कि बैंक में रखें, मेरा ज्वेलरी जो है बैंक में रख दिया तो दैट इज सेफर, और अगर मैं मेरे पास रख लूं तो इट्स नॉट सेफर। टुडे का जमाना में ऐसा कि इफ आई बिल्ड अ सर्वर हियर एंड मेरे सर्वर में मेरा कंपनी का अगर डेटा रखता हूं तो दिस इज नॉट सेफ। तो आज के जमाने में ऐसा हो गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा आई डोंट वांट टू टेल यू द एग्जैक्ट फिगर्स एंड ऑल, जैसे साइबर सिक्योरिटी का हुआ नहीं तो आपको होगा, तो उसमें बोल देंगे कि आपको माइंड ब्लॉक हो जाएगा, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है थ्रू वर्ल्ड में, इतना बड़ा फ्रॉड। ओके ठीक है, एक बंदा रहेगा, हाँ 18 साल का रहेगा, कहीं पे पाकिस्तान के अंदर बैठ जाएगा, तो सीरिया के अंदर कहीं पे नाला में बैठ जाएगा, वो करेगा 18 बैंक का लूटी, 18 बैंक का लूटी। ऐसा हुआ है, रियल लाइफ में ऐसा हुआ है। तो नाउ व्हेन यू पुट इट ऑन द क्लाउड, Amazon will take care of it और Google will take care of it। सो आप क्या कर रहे हो कि Google क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आपका पूरा डेटा चल रहा है। तो अभी क्या हो गया, SAP is now into a phase where they have done highest level of security। अभी आपका क्या हो गया कि पूरा इंटीग्रेट हो गया और also your data is also secure, ऐसा उन्होंने बनाया। इसीलिए इसकी वजह से SAP is now implemented and used by more than 4 लाख कंपनीज। और ये 4 लाख कंपनीज है, छोटे-छोटे कंपनीज नहीं है। जैसे आपको पेप्सिको है, बैंक ऑफ अमेरिका है, इंडियन एक्सप्रेस है, तो ICICI बैंक है, और इंडियन रेलवेज आल्सो यूज्ड इन द बैक एंड SAP, एंड जैसे बहुत बड़े-बड़े कंपनीज, ओके, ऑल दिस कंपनीज ऑलरेडी यूज SAP। तो इसमें क्या है कि नाउ वी गेट इनटू अ फेज वेयर वी शुड बी नोइंग अबाउट SAP, वी शुड बी नोइंग अबाउट SAP। तो इसमें दिस इज अ वेरी बेसिक लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन। So you ask me any questions, then from there I will. Sir, can you explain please? We have all partnership firm or mid-size firm. In our firm, हम कैसे SOP सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अपना पूरा डेटाबेस ट्रांसफर कर, वो चीपेस्ट और पूरा Exact, very good question. तो SCS में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो बनता है अभी, उसमें सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल जो होता है वो बिजनेस वन होता है। बिजनेस वन करके एक सॉफ्टवेयर आता है, बिजनेस वन। तो ये जब बिजनेस वन है, इस सॉफ्टवेयर को आप अगर आप ट्रायल वर्जन पे यूज कर सकते हो। अभी 1 मंथ का ट्रायल वर्जन था, आप चेक कीजिए, आप SAP में लॉगिन करके आप पूछ सकते हैं। ट्रायल वर्जन 1 महीने का था, अभी है, निकाल दिए एग्जैक्टली। तो बिजनेस वन एक ERP सॉफ्टवेयर है। हाँ, बिजनेस वन है छोटे स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज के लिए है, स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज के लिए है बिजनेस वन। इसमें आपको जस्ट क्या कर सकते हैं इसमें आप लॉगिन कर सकते हो। तो यू हैव अ मिनिमम ऑफ 10 लॉगिन्स करके है।
इसके बाद में क्या है ना आप डिस्कस करें तो 4 लॉगिन्स भी दे देगा। तो उसमें क्या है ना कि 4 लॉगिन्स का आपको पे करना होगा, उसमें आप पूरा जो कंपनी का पूरा है आप उसमें मेंटेन कर सकते, जैसे टैली में आप मेंटेन करोगे तो उससे बढ़िया होगा, बढ़िया मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इफ यू आर यूजिंग अ वेरी सिंपल बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक अपडेशन है तो आप सिंपल सॉफ्टवेयर में ही कर सकते हो। मगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है तो बिजनेस वन इज बेस्ट। देख लीजिए कि अगर 10 करोड़ से ज़्यादा चल रहा है, 10 करोड़ से 100 करोड़ का आपका टर्नओवर है तो आपको बिजनेस वन बेहतर है। 100 करोड़ से ज़्यादा का है तो यू कैन गो फॉर S/4HANA। सूट फॉर HANA। Skill manpower we are not getting for HANA. हाँ। Mainly the problem is the facilities given in HANA cannot be extracted by the normal staff of the company. हाँ। We need skilled manpower. तो now it's a very good Rajesh. Rajesh sir told one major issue is that we don't have a skilled manpower। अभी क्या होता है कि SAP में जो बंदे काम करते हैं उसका सैलरी भी बहुत ज़्यादा होता है। You know, they just do some small things and then they charge like heavy lakhs। उसमें उनको hundreds में thousands में काउंटिंग नहीं आता है, पूरे lakhs में काउंटिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि this is something which is very serious for small companies। अभी होता है कि now SAP has introduced artificial intelligence into this one। तो अभी क्या है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको क्या है ना बैकएंड का जो डेटाबेस का हो वो बाद में बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होगा कि आपको चैटबॉट्स आ गए। आप चैटबॉट्स के नाम सुने हो? चैट। सो चैटबॉट्स में क्या है ना कि अगर हम लोग अभी चैटबॉट्स इसलिए यूज कर रहे हैं कि नाउ वी आर यूजिंग चैटबॉट्स एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर कॉल सेंटर्स। जैसे हम लोग कॉल करते थे, एयरटेल का कुछ है तो कॉल करके पूछते थे ऐसा है वैसा है। तो हम लोग मतलब जब इंजीनियरिंग में पढ़ते थे टाइम पास के काम कॉल करते थे, ऐसे बात करके ऐसा क्या अच्छा लगा। तो अभी क्या है ना कि पूरा चैटबॉट हो गया। तो चैटबॉट में क्या है ना कि नाउ यू जस्ट इंटरेक्ट विद द सिस्टम एंड सिस्टम विल गेट बैक टू यू विद द रिस्पांस। नाउ सर हैज told one thing, now you just want to download some report, you have to download a simple report। आपको एक मतलब टैक्सेशन का पूरा डिटेल्स है, चलो ये खींच के लाओ। नाउ वेयर यू राइट द कोड, कहाँ पे जाके कहाँ से खींचना है आपको पता नहीं होगा। इट्स अ बिग हेडेक बिकॉज यू आर नॉट इनटू टेक्नोलॉजी, यू आर इनटू द फाइनेंस, ठीक है। तो आपको ये चैटबॉट का इंटीग्रेशन मिलेगा जहाँ पे आपको बोलेगा कि अभी हम लोग वॉइस का भी कर रहे हैं, अभी चल रहा है। तो नाउ आई एम इनटू ग्लोबल इनोवेशन, so I represent India in global innovations for SAP। तो उसमें क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि चैटबॉट से अभी आप टाइप करके वो रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। If I had that slide I could have showed you live, ठीक है, मतलब जो प्रोजेक्टर के है तो बाद में हम लोग कभी टाइम मिला तो आपको आप बोलेंगे कि डाउनलोड दिस रिपोर्ट फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, वो क्वेश्चंस पूछेगा, मतलब हम लोग को बिल्ड करना होगा चैटबॉट। ये बाय डिफॉल्ट तो नहीं आएगा कि आई हैव टू बिल्ड दैट इन द बैकएंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि ये वाला रिपोर्ट मुझे चाहिए तो वो पूछेगा टाइम पीरियड, उसके बाद में पूछेगा कौन सा डिटेल्स उसको चाहिए वो पूछेगा, आप दबाते रहो, आपको फाइनल में क्या होगा आपको चैटबॉट में ही डाउनलोड हो जाएगा, पीडीएफ में आ जाएगा, डाउनलोड कर लो, हो गया। आपको एक्सेल में चाहिए, आई डोंट वांट पीडीएफ, एक्सेल सेलेक्ट करिए, एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा। ये सब जो है एक जमाने में नॉट जस्ट not more than 5 years before, these all things were not there and a lot of people are not aware of it। तो अभी क्या है ना कि टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया कि आपको सिर्फ बोलना है, आपको सोचना है, बोलना है, कुछ नहीं, कुछ करना कुछ नहीं है, वो कर देगा सिस्टम। Power BI is a tool or just a small version of ERP? अभी हो गया कि ERP जो है वो बिजनेस चलाने के लिए उसको बोलते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, OLT। आप क्या लीजिए कि आप जब सुनते हैं ना टेक्निकल टर्म्स निकाल लीजिए, स्टोरी याद रख लीजिए, ठीक है। डोंट आई मीन बिकॉज मेरे को टेक्निकल वर्ड आ जाएंगे, उसको आप छोड़ दीजिए, बाद में हम लोग बात करेंगे। तो OLTP होता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग है, उसमें ERP जो है वो सॉफ्टवेयर आप बिजनेस चलाने के लिए यूज करते हो ERP। जो और एक सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं OLAP, ऑनलाइन
कि जैसे कि आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन चल रहा है, धंधा चल रहा है, तो आप किसी कहीं पे लिख लेना है ना, वो कहाँ पे लिख रहे हो आप, ERP में लिख रहे हो, ठीक है। मगर आपको बैठ के एनालाइज करना है, यार मेरा धंधा कैसे चल रहा है, उठ रहा है या नीचे जा रहा है, तो उसके लिए आप एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। उसमें SAP का जो सॉफ्टवेयर है, SAP BI है, SAP बिजनेस इंटेलिजेंस। उसको मैं पहले SAP बिजनेस इंफॉर्मेशन के लिए, उसके बाद बिजनेस वेयरहाउस था, उसके बाद बिजनेस इंटेलिजेंस है, अभी फिर बिजनेस वेयरहाउस फिर बना दिया। तो सर SAP से जो 40 मॉड्यूल है, इसमें एनालिटिकल मॉड्यूल नहीं है। हाँ, वो अलग है। ये 40 जो मॉड्यूल्स है वो ERP के अंदर है। ओके, वो चलाने के लिए। हाँ, जैसे मैंने BMW का एग्जांपल दिया था, BMW एक कार का फैक्ट्री है, जैसे BMW एक कार का फैक्ट्री है, SAP भी एक ERP का फैक्ट्री है। ऐसा नहीं है कि वो ERP बनाता है, वो अदर सॉफ्टवेयर से भी बनाता है। उसमें OLAP सॉफ्टवेयर भी है, उसमें SAP BI है, उसका नंबर 1 कॉम्पिटिटर है MS BI, माइक्रोसॉफ्ट BI, और उसको Power BI भी बोलते हैं। एंड नंबर 1 पॉपुलर सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड अभी Power BI। तो Power BI जो है वो एनालिसिस करने के लिए यूज होता है, वो बिजनेस चलाने के लिए नहीं, एनालाइज करने के लिए यूज होता है Power BI। और Power BI इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का आपको जो भी टेक्नोलॉजी देती है सर, वो इजी है, यूज करने के लिए इजी है। बंदों को क्या चाहिए, इजी, कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए। आपको एरोप्लेन नहीं चलाने का, सिर्फ एक कार चलाने का। उसका सर ने क्वेश्चन किया था, उसमें सर ने बोला कि रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करना हमको नहीं आता है, वो माइक्रोसॉफ्ट होगा तो हम एक बार कर रिस्क ले लेते हैं, देखने को, सीखने के लिए। आराम से आप 6-7 घंटे में सीख सकते हो, मतलब बेसिक वर्क। आपको ज्यादा इंडेप्थ घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मैं क्या बोलता हूँ कि एक किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी में आपको पूरा नहीं घुसना है, आप डूब जाओगे, सिर्फ तैरना तो अच्छा है, तो अभी ज्यादा नहीं, उसको यूज करना है, छोड़ देना यूज कर। तो माइक्रोसॉफ्ट BI ऐसा टूल है जिसको आप 6-7 आवर्स यूज करके, मगर क्या है कि MS BI डेटा के ऊपर बैठना चाहिए। तो डेटा कहाँ से आ रहा है उसको सबको आप MS